So student, homogeneous differential equation we have started in the last lecture, and we have discussed the basic structure of the homogeneous, and we have taken one question. I will take one more question from the homogeneous. Say this is the unsolved question from your exercise, third exercise, which is solve x sine y over x into dy is equal to y sin y over x minus x. ये थोड़ा सा अलग काइंड का क्वेश्चन है. So the first thing you know that what you will do, you will write in dy by dx whether it is homogeneous or not, but one thing you will try. dy को ऊपर रखो, ये नीचे चले जाएगा, ये आपके पास आएगा y sin y over x minus x अपॉन x sin y over x. तो ये आपके पास बन गया. अब ये वेरिएबल सेपरेट तो हो नहीं रहे. It is not of the form of depending on the linear. No, this is the, but आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी भी लग रही है कि ये होमोजेनियस कैसे होगा. देखो जी, ये डिग्री हमारे पास y की पावर 1 है, ये y की पावर 1 है, तो ये तो 0 होगी डिग्री. तो अब इसमें तो कोई डिग्री हम निकालते नहीं, जब साइन की इसमें तो हम देखते नहीं है. अब इसमें डिग्री के हिसाब से नहीं, यू कैन नॉट मूव इट. बट एक चीज देखो कि y की पावर 1, y की पावर x की पावर 1, x की पावर, तो ये तो कैंसिल कर रहा है डिग्री का. तो यहाँ पे इतना हम डिग्री के हिसाब से नहीं कर सकते, बट एक आइडिया सा लगा सकते हैं. अंडरस्टैंड. और एक चीज बड़ी बढ़िया इसमें, ये भी ये फंक्शन y और x की फॉर्म में ही है. मतलब अगर आप देखो तो किसी होमोजेनियस फंक्शन, हाउ इफ यू कैन गेट x फ्रॉम द न्यूमिनेटर, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे y ओवर x साइन y ओवर x माइनस 1, और डिनोमिनेटर से आप x तो कैंसिल हो ही जाएगा. ठीक है जी. तो देखो, द होल फंक्शन डिपेंड अपॉन y ओवर x, एंड यू नो दैट द बेसिक definition of the homogeneous function is if you are able to convert fxy in the form of x raised to power n of phi y over x, तो x बाहर तो नहीं है, उसकी पावर 0 मानी जाएगी. बट ये हमारे पास जो रिजल्ट का बैलेंस बचा, ये इट इज ऑफ द फॉर्म y over x. So I think it is very much clear. Now you can apply it in homogeneous differential equation. So you will write it is homogeneous differential equation. Therefore put क्या करना है, y is equal to vx. So when you will put y is equal to vx, you will differentiate every time this step will be implement. But I will take one more question after that. आपकी एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है, फिफ्थ और सिक्स्थ. ये दोनों ही थोड़ा सा अलग है, वो बताएंगे क्या है. पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. dy by dx डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो v outside derivative of x1, then x outside derivative of v with respect to x. So you will put this dy by dx in this equation. You can take equation number 1 also. It is up to you how you are proceeding the question. So therefore 1 becomes v plus x dv by dx. ये y की वैल्यू vx, ये साइन y की वैल्यू vx अपॉन x minus x. Here you have x sin vx upon x, x cancel. So from the numerator x is cancelled, you are having v sin v minus 1. डिनोमिनेटर से जो न्यूमिनेटर में x कैंसिल हो गया, you are getting sin v. I told you that if your right hand side is depending upon x, then it is not a homogeneous. उसमें से रिमूव होना चाहिए x. तो done is already in v, so you can use now ये v जो this v will be on shift u will on the other side. बड़े ध्यान से देखिए, v sin vx minus 1 sin v minus v. So you will take LCM, sin v sin v minus 1 minus v sin v. So this is cancelled out,
-1 upon sin v. Okay, so you have x dv by dx is equal to -1 over sin v. अब आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो, ये sin v dv और ये 1 over x minus 1 over x dx. Now what is the next step? You will integrate it. ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस बी 1 over x का log x. अब जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना आपने, ठीक है जी, उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, यू विल जस्ट राइट इट सी. ओके, तो ये माइनस को अगर मूव करना है बेटा जी तो कर भी सकते हो. ये cos v की वैल्यू पुट कर दो, बिकॉज y is equal to you have a vx and v is equal to y over x, so you can put y over x. ये माइनस माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने, तो log x, वो माइनस इसके साथ आ गया, तो आप इसको प्लस में भी कन्वर्ट करके c1 लिख दो. cv कांस्टेंट है, माइनस c1 भी कांस्टेंट होगा, यू कैन टेक अनदर कांस्टेंट. सो दिस इज द फाइनल आंसर. This is the final answer of the given homogeneous equation. And one more thing is, you must know the answer will be always in x and y, not in v. V is the temporary variable that you have assumed just to solve the given equation. And आपने अगर मैं माइनस निकालता हूँ यहाँ पे, आप देखो ध्यान से, आप मैंने ये माइनस को ऐसे लिखा माइनस c1, तो बेटा माइनस c तो कांस्टेंट है, मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो माइनस c की वैल्यू नहीं पता, तो मैं माइनस c को c1 ले सकता हूँ. अब माइनस c रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, because we don't know the value c, you don't know the value c1. बोलिए, see this question. अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम आपके होमोजीनियस की फॉर्म में कर सकते हैं. अब सर देखो dy by dx, पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं. एक चीज ध्यान रखना है आपने बड़े अच्छे से, y ये नीचे गया है, ये नीचे गया, तो y e raised to power x over y अपॉन x e raised to power x upon y प्लस y स्क्वायर, ये आ गया. बेटा जी इसमें खास क्या है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें खास ये है कि x ओवर y और y ओवर x जब भी आपको मिले, यू मस्ट थिंक अकॉर्डिंग टू द होमोजेनियस. अब बोलोगे सर कैसे, चाहे इसकी कॉमन निकालकर वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही y ओवर x में, वो बात अलग है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास y ओवर x था, y ओवर x, तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया. ऐसे क्वेश्चन में आपने x की वैल्यू पुट करनी है, क्या वी एक्स वी वाई, क्योंकि एक्चुअली क्या करेगा, अगर y को वी एक्स ले लेते हो तो v डिनोमिनेटर में आ जाएगी, वो प्रॉब्लम वाला क्रिएट हो जाएगी. तो अगर मैं x की वैल्यू वी एक्स लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. यू कैन, आपके पास वी वाई. अब बोलोगे सर जी हमारे पास फंडामेंटली आपने याद रखना है कि जब आपने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया, जहां x इज इक्वल टू वी वाई पुट किया, राइट हैंड साइड में अगर तो आपने पुट किया y इज इक्वल टू वी एक्स, तो ये जो राइट हैंड साइड वाला फंक्शन है इसमें x नहीं नजर आना चाहिए, पूरा का पूरा रिमूव होना चाहिए. दूसरी बात, अगर आपने x इज इक्वल टू वी वाई पुट किया तो राइट हैंड साइड के अंदर y नहीं नजर आना चाहिए, सॉरी y में तो आ सकता है, x नहीं नजर आना चाहिए, ठीक है. रीजन क्या, अब जरा देखो, जब आप पुट करोगे ना, देखो
जब आप x इज इक्वल टू वी वाई पुट करोगे, वो तो हमने इस रीजन के कारण पुट किया कि ऊपर न्यूमिनेटर में वी वाई है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y. I will differentiate with respect to y. So dx upon dy will be uv outside, derivative of y is d1 because we are finding derivative with respect to y, plus y outside derivative of v dv by dy. ठीक है, पर अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो dy by dx है, यहाँ पे मेरे पास dx है, तो इसको रिवर्स कर दीजिए. ये इक्वेशन आपने इस तरह से बनानी है, dx by dy. ये आ जाएगा आपके पास x इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा y e रेज पर x अपॉन वाई. आप पुट कीजिए यहाँ पे, व्हेन यू विल सब्स्टिट्यूट दिस, व्हाट यू विल गेट, v अपॉन y dv by dy. अब वैल्यू पुट कीजिए x की, वैल्यू ऑफ x इज vy प्लस इंटू ई, x की वैल्यू vy अपॉन y माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय y e रेज टू पावर vy अपॉन y. ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ से मैंने y कॉमन निकाला न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर y से कॉमन हो गया v. ठीक है जी, v e रेज टू पावर v और प्लस y अपॉन y. ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इसके अंदर ये चला गया, ये चला गया, ये y चला गया. यू हैव e रेज टू पावर v. इसमें एक छोटा सा लॉजिकली डिफरेंस है. लॉजिकली डिफरेंस बेटा जी, ये यहाँ पे स्केयर वाला नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव ए प्रॉब्लम हियर. तो ये क्वेश्चन के अंदर छोटी सी मिस्टेक थी, आई हैव क्लैरिफाई है. तो नाउ व्हेन यू विल कैंसिल इट, यू विल गेट हियर 1, बिकॉज अदरवाइज वेरिएबल सेपरेशन नहीं कर पाओगे आप ना, समझ गए. तो बिल्कुल नाउ थिंग्स आर वेरी ओके कि जब y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करो तो राइट हैंड साइड में x नहीं नजर आना चाहिए, जब x इज इक्वल टू वी वाई पुट करो राइट हैंड साइड में y नहीं नजर आना चाहिए. तो ये देखो फिनिश रिमूव हो गया. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये v उठाकर हम ले आए राइट हैंड साइड में, मेरे पास बन गया y dv बाई dy इज इक्वल टू v e रेज टू पावर v प्लस 1 e रेज टू पावर v minus v. You will take the LCM e raised to power v e raised to power v plus 1 minus v e raised to power v. ये बेटा इससे कैंसिल हो गया. ठीक है जी, तो हमारे पास y dv by dy इज इक्वल टू 1 ओवर v e रेज टू पावर v बच गया. तो मेरे पास यहाँ पे ये बन गया e रेज टू पावर v इज इक्वल टू dv और 1 ओवर y dy. इंटीग्रेशन किया, ओके जी, 1 ओवर y. ठीक है जी, ओके e रेज टू पावर v, ये e रेज पर v की इंटीग्रेशन e रेज पर v, ये अगर log y प्लस c, और v की वैल्यू e रेज टू पावर v x अपॉन v की वैल्यू थी x इज इक्वल टू v ओवर v इंटू वाई. तो x v की वैल्यू आ गई x अपॉन y, तो log y प्लस c. अब देखिए ये मैंने इस क्वेश्चन को फिर इसलिए रिमूव किया, जो फंडामेंटल है वो आपने याद रखना, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे यूनिक होंगे कि ये होमोजीनियस बनेगी नहीं. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि ये होमोजीनियस नहीं बनेंगी, पर फिर भी इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा. अब बोल सर कैसे, मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे स्केयर होता, तो ये तो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, ये तो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा,
ठीक है ना, ये तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, पर ना तो ये होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है जी, ना फिर ये होमोजेनियस इक्वेशन रही, फिर भी मैं x इज इक्वल टू वी वाई पुट करूंगा, सुन लो ध्यान से जरा, फिर भी मैं पुट करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई हल ही नहीं है, इसका कोई और सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, फिर भी करूंगा, एक बार आपने करके देखना और इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल अलग हो गया, फिर भी आपने जब जैसे e की पावर है y ओवर x, log x ओवर y, log y ओवर x, sin x ओवर y, sin, तो ऐसे जब होगा तो आपने यही स्टेप लगा अप्लाई करना होमोजेनियस का, वेदर इट विल बी होमोजेनियस और नॉट होमोजेनियस, फिर भी आपका ये काम चलेगा। अब बोलो सर वाई स्केयर से सॉल्व करके दिखा दो, दिखा देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे वाई स्केयर था एग्जाम्पल के लिए, है ना, तो यहाँ पे वाई रह गया, यहाँ पे वाई रह गया, जब आपने इसको कैंसिल किया, मान लो ये वाई होता, तो यहाँ पे वाई रह गया ना, यहाँ पे वाई रह गया, अब ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कैसे, क्योंकि आपके पास वाई बचा और ये वाई कैंसिल हो गया, अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा ये वाई बचेगा नहीं, ये वाई बचेगा नहीं, तो यहाँ पे वाई आंसर आ जाएगा, ऐसे करके सुन लो जरा, साइन के साथ जहाँ वाई ओवर एक्स, साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, लॉग के साथ, एक्सपोनेंट में, तब आपको स्टेप इन्हीं में से एक अप्लाई करना होगा, अगर y ओवर x होगा तो y की वैल्यू vx पुट कीजिए, अगर x ओवर y होगा तो x की वैल्यू vy पुट कीजिए, वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट। लो जी, so this is the next topic, so it's very small topic, and what kind of equation will be there when you will reduce the into homogeneous, पहले actually variable separate नहीं हो रहे थे, तो you will check whether it is homogeneous or not, अब ये ना तो लीनियर के ऊपर डिपेंड हो, ना ये वेरिएबल सेपरेशन से ना हो, तो ना ही ये होमोजेनियस है, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस, तो आपके पास जो dy बाई डी एक्स हो ना, वो इस तरह की इक्वेशन होनी चाहिए, तो यू कैन रिड्यूस इनटू होमोजेनियस लाइक ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश, करेक्ट, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, यू विल फाइंड एक ऐसा आप फॉर्मेशन चेक करोगे जिसके अंदर आप इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सको, इसमें भी आपको फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके लिए मैं सीधा फंडामेंटली बताऊंगा, क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा, ये क्वेश्चन लास्ट फाइनल एग्जामिनेशन में आया हुआ है, एग्जाम्पल आपको दी हुई है, सॉल्व, जैसे 3y प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स माइनस 4x प्लस 6y प्लस 5 dy इज इक्वल टू 0, सबसे पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू इन द फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसको इधर ले आए, तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये 3x, x को पहले ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये नीचे चले जाएगा, 4x प्लस 6y प्लस 5, अब आपने देखना है कि इसमें कोई कॉमन लीनियर हो, कॉमन लीनियर तो ऐसे सीधा तो दिख नहीं रहा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और फिर आपको उसके ऊपर यूज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ प्लस 4 था, सॉरी प्लस 4, तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो यू विल गेट 2x प्लस 3, जस्ट ऑब्जर्व दिस राइट हैंड साइड, देखो 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y, नाउ व्हाट इज द स्टेप, स्टेप वही होगा हमारा जो सेकंड वाला है, कि आप क्या करोगे, आपने पुट करना है 2x प्लस 3y को इज इक्वल टू अनदर वेरिएबल t, जो कॉमन लीनियर है, सो डेरिवेटिव करोगे, 2 बाहर है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है, 2 आ गया, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, t का डेरिवेटिव dt बाई dx, सो यू हैव 3 dv बाई dx dt बाई dx माइनस 2, और dy बाई dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/3 dt बाई dx माइनस 2, ये वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको पुट कर देने हैं, देयरफॉर
equation 1 becomes, this will be 1 by 3 dt by dx minus 2 इज इक्वल टू, बेटा इसकी वैल्यू आपके पास t आ गई है, प्लस 4 अपॉन 2 t प्लस 5, करेक्ट। अब ये देखिए, अब हमारे पास इसको जरा सॉल्व करते हैं। जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल में तो सीधा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल सेपरेशन हो रही है। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 बाई 3 उधर चला गया, ये 3 उधर चला गया, 3t प्लस 4 अपॉन 2t प्लस 5, ये जो 3 इधर चला गया, ये माइनस 2 इधर जाके हमारे पास प्लस 2 होगा। ओके, सो यू विल गेट हियर dt by dx is equal to 3t plus 12, LCM लिया 2t प्लस 5, ये बन गया जी 2t 4t प्लस 10, सो फाइनली 7t प्लस 22 अपॉन 2t प्लस 5। तो अब हमारे पास आ गया dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7t प्लस 22 बाई 2t प्लस 5। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 2t प्लस 5, इसको उधर लेके जाना है, वेरिएबल सेपरेशन करना होगा, 7t प्लस 22 dt इज इक्वल टू डी एक्स। अब बेटा जी इसको आपने जब सॉल्व करना है, अब ये तो सिंपल प्लस सी आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन करना आपने, पता लीनियर ओवर लीनियर है, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो आपको पता डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करो बेटा यार, 2t प्लस 5 अपॉन 7t प्लस 22, सुन लो ध्यान से, यहाँ पर 7t है, यहाँ पर 2t है, मेरे को 2t चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7 से और डिवाइड करूंगा 2 से, तो 7 बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 2t, 22 को 7 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 11 77 आ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 77 में माइनस किया तो आ गया 70, बाई 7 तो नहीं चलने दीजिए, तो मेरे पास आ गया जी 72। अब आपको पता है दिस डिवाइड बाय दिस कोशेंट 7 बाई 2 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरे पास माइनस 72 है, ओवर डिवाइजर, तो इसका इंटीग्रेशन और x वन का इंडिकेशन x विद रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी दिस। अब ध्यान दीजिए 7 बाई 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, दैट विल बी t, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, माइनस 72, इसमें से 7 कॉमन निकाल दो, अब इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, ठीक है जी, माइनस 72, यहाँ से 7 कॉमन निकाल दिया, इंटीग्रेशन आ गया t प्लस 22 बाई 7 dt x प्लस c, तो 7 बाई 2 t माइनस 72 बाई 7, ये बन गया लॉग t प्लस 22 बाई 7 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब कुछ नहीं, t की वैल्यू क्या थी, 2x प्लस 3t, 3y इज इक्वल टू t, ये आप t की वैल्यू पुट कर दो, बिकॉज t इज द टेम्परेरी वेरिएबल दैट वी हैव टेकन, 7 बाई 2 is 2x plus 3y, 72 by 7 log 2x plus 3y plus 22 by 7 x plus c, so
दिस इज द फाइनल आंसर।